رشتے خود غرضیاں. کیا ہو گیا ہے مجھے؟ میرے معصوم بچے پہ جھوٹا الزام لگا کے اسے اس گھر سے سب کے دل سے نکال کر تم دونوں میاں بیوی تو پتلی گلی سے نکل گئے اور اب مجھ سے معصومانہ طریقے سے پوچھ رہے ہو کہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ تم خود چھوڑ کے گئے تھے نا یہ گھر، اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کس سے ملنے آئے ہو؟ نکلو یہاں سے. پیچھے لگ کے گیا تھا، باقی دونوں ایسا نہیں کریں گے، یقین ہے مجھے. تو پھر دل کو تھام لو، تمہارا یقین بہت جلد زمین بوس ہونے والا. تو سارا دن تم نے کیا کیا ہے؟ لیکن اپنا کیا اولیا بنایا ہو تم نے؟ کھانا نہیں بنا سکی تو ایٹ لیسٹ اپنا حلیہ ہی درست کر لیتی. یہی چاہتی تھی نا تم کہ اکیلی رہو، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، کوکنگ کرو یا نہ کرو، اگر کھانا جل جائے تو سو واٹ، گھر صاف ہے یا گندا کوئی پوچھنے والا نہ ہو. لیلا میرے گھر میں آج تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. دل پر نہیں، دماغ پر. اور بات تو ٹھیک ہے ان کی، ساری عمر چھوٹا بھائی بن کر ان کی جی حضوری میں لگا اور وہ ابا جی کے احترام اور بھائی ہونے کا لحاظ کرتے. لیکن اب جب سارے لحاظ سارے احترام ختم ہو گئے تو میری حیثیت بھائی کی نہیں ایک بھکاری کی ہوگی. چاہیے نا، لیکن وہ کیوں سوچیں گے؟ ماں باپ کی بجائے ان کو اپنے بچے نظر آ رہے ہیں. خود غرض ہو گئے ہیں، خود غرض. مجھے نہیں چاہیے. سوری کیا تو تھا. ٹیکسٹ پہ سوری کرنے سے سوری ہو جاتا ہے؟ یار اب شرمندہ ہوں اپنی غلطی پر، اسی لیے تو ناشتہ بنا کر لایا. مجھے تم سے بات نہیں کرنی کیس. تم بھی بات نہیں کرو گی تو کہاں جاؤں گا میں؟ جاؤ اب اپنے چمکتے دمکتے محبت بھرے گھر میں، جس کی یاد نے تمہیں میری محبت بھلا دی تھی. کل وہیں سے ہو کر آیا تھا. حمید کو آپ ان کا حصہ نہیں دے رہے اور میرے بچے کو اس گھر میں گھسنے کی اجازت تک نہیں ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے آپ کی خدمت میں کھڑی رہوں. ایسا نہیں ہو سکتا ابا جی. آپ راشدہ کو کہتے مجھے دیر ہو رہی ہے. چاچی ڈر گئی ہے تو. کس سے ڈر گئی؟ نہیں وہ بس ایسے ہی. ہاں بتاؤ کس سے ڈری ہو تم؟ بڑی فٹ چاچی ہے تیری یار. فٹ نہیں، آفت ہے. لو میرج ہے میرے چاچو کی. ابھی تک اسی طرح کا کامتا ہوا وجود میری نظروں کے سامنے آ جاتا. غصے سے دماغ کھولنے لگتا. شہرت کی چکاچون دنیا میں ہر چہرے کے پیچھے ایک حقیقت چھپی ہوتی ہے، اور آنم کی حقیقت وہ تھی جو کیمرہ کبھی قید نہ کر سکا. آنم ایک کامیاب اداکارہ تھی جس کے ڈرامے پاکستان بھر میں مقبول تھے. اس کی مسکراہٹ، انداز اور آنکھوں کی جادو ہر دیکھنے والے کو اپنا گرویدہ بنا لیتا، مگر اندر سے وہ تنہائی کا شکار تھی، ٹوٹتی ہوئی، بکھرتی ہوئی. اس کی زندگی پر اس کی ماں شگفتہ بیگم کا مکمل اختیار تھا، جو ہمیشہ پیسہ اور شہرت کی دیوانی رہی تھی. شگفتہ بیگم کے لیے آرام ایک برانڈ تھی. بیٹی نہیں، یہ رول کر لو، اس سے فالورز بڑھیں گے، تمہیں سب سکرین پر پرفیکٹ لگنا ہے، باقی سب چھوڑ دو. ایسی جملے آرام کے کانوں میں روز گونجتے. ایک دن ڈائریکٹر فیضان نے آرام کو اپنے ڈرامہ
निकाब के लिए अफर्दी वो कहानी एक ऐसी लड़की पर मबनी थी जो शोहरत की चमक के पीछे अपनी शनाख्त को देती है। आलम को लगा जैसे वही कहानी इसकी अपनी है। फैजान जो खुद भी फिल्मी दुनिया की सियासत से मायूस हो चुका था, वो एक सच्चा और गहरा इंसान था। इसकी नजर आलम के असल शख्सियत पर पड़ी, ना कि उसके मास्क पर जो वो दुनिया को दिखाती थी। ड्रामा की रिहर्सल के दौरान आलम और फैजान के कुर्बत बनने लगी। आलम पहली बार किसी से खुल कर बात करती हंसती रोती। तुम इतनी उदास क्यों हो? आलम फैजान ने एक दिन पूछा। क्योंकि मैं वो हूँ, यही नहीं जो लोग देखते हैं। आलम के बाद लहज की फैजान ने उसे यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उसके अदाकारी का नहीं और उसका सच का भी किरदार है। आलम के दिल में बरसों से दिबी मोहब्बत के ख्वाहिश जाग उठी, लेकिन तभी मार्जी का एक साया लौट आया। दानिश, आलम का साबिका मंगेतर, इसने उसे सिर्फ शोहरत की सहेली समझता था। अब वो वापस आकर आलम की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। दानिश ने मीडिया पर आलम के खिलाफ झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी। आलम का फैजान से गैर-अखलाकी ताल्लुक। आलम ने ड्रामे में नामुनासिब सीन करने से इनकार कर दिया। शूटिंग बंद, हर तरफ सिर्फ इल्जाम, तनकीद और तबसरे। सोशल मीडिया ने इसे बुलंद बना दिया। आलम एक बार फिर टूट गई। शगुफ्ता बेगम ने उसे कहा, खामोश रहो, सफाई दो और अगला प्रोजेक्ट साइन करो। मगर इस बार आलम खामोश न रही। उसने एक लाइव इंटरव्यू में अपनी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। मैं सिर्फ अदाकारा नहीं, एक इंसान हूँ। मुझे शोहरत नहीं, ये सच्चाई है। फैजान ने उसके साथ खड़े होकर इसे सहारा दिया। सच बोलने में इसको वक्त लगता है, लेकिन आखिरकार सच ही जीतता है। ड्रामा निकाब रिलीज हुआ, वो ही हेड हो गया नाज़रीन को आराम। किरदार दिल से लगा, लोगों ने उसे दोबारा इज्जत दी। मोहब्बती शगुफ्ता बेगम ने पहली बार अपनी बेटी का आंखों में इत्मीनान देखा। शायद अब तुम वाकई एक पंखार बन गई हो, उन्होंने इस्तेहज़ा ये कहा। ड्रामा सीरीज के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करिए। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। शोहरत की चकाचौंध दुनिया में हर चेहरे के पीछे एक हकीकत छिपी होती है, और आलम की हकीकत वो थी जो कैमरा कभी कैद ना कर सका। आलम एक कामयाब अदाकारा थी जिसके ड्रामे पाकिस्तान भर में मकबूल थे। उसकी मुस्कुराहट, अंदाज और आंखों की जादू हर देखने वाले को अपना गर्विदा बना लेता। मगर अंदर से वो तन्हाई का शिकार थी, टूटी हुई, बिखरती हुई। इसकी जिंदगी पर उसकी माँ शगुफ्ता बेगम का मुकम्मल इख्तियार था, जो हमेशा पैसा और शोहरत की दीवानी रही थी। शगुफ्ता बेगम कहते आलम एक ब्रांड थी। बेटी नहीं, ये रोल कर लो, इससे फॉलोअर्स मरेंगे। तुम्हें सिर्फ स्क्रीन पर परफेक्ट लगना है, बाकी सब छोड़ दो। ऐसे जुमले आलम के कानों में रोज गूंजते। एक दिन डायरेक्टर फैजान ने आलम को अपने ड्रामा निकाब के लिए अफर्दी वो कहानी एक ऐसी लड़की पर मबनी थी जो शोहरत की चमक के पीछे अपनी शनाख्त को देती है। आलम को लगा जैसे वही कहानी इसकी अपनी है। फैजान जो खुद भी फिल्मी दुनिया की सियासत से मायूस हो चुका था, वो एक सच्चा और गहरा इंसान था। इसकी नजर आलम के असल शख्सियत पर पड़ी, ना कि उसकी मास्क पर जो वो दुनिया को दिखाती थी। ड्रामा की रिहर्सल के दौरान आलम और फैजान के कुर्बत बनने लगी। आलम पहली बार किसी से खुल कर बात करती हंसती रोती। तुम इतनी उदास क्यों हो? आलम फैजान ने एक दिन पूछा। क्योंकि मैं वो हूँ, यही नहीं जो लोग देखते हैं। आलम के बाद लहज की फैजान ने उसे यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उसके अदाकारी का नहीं और उसका सच का भी किरदार है। आलम के दिल में बरसों से दिबी मोहब्बत के ख्वाहिश जाग उठी, लेकिन तभी मार्जी का एक साया लौट आया। दानिश, आलम का साबिका मंगेतर, इसने उसे सिर्फ शोहरत की सहेली समझता था। अब वो वापस आकर आलम की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। दानिश ने मीडिया पर आलम के खिलाफ झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी। आलम का फैजान से गैर-अखलाकी ताल्लुक। आलम ने ड्रामे में नामुनासिब सीन करने से इनकार कर दिया। शूटिंग बंद, हर तरफ सिर्फ इल्जाम, तनकीद और तबसरे। सोशल मीडिया ने इसे बुलंद बना दिया। आलम एक बार फिर टूट गई। शगुफ्ता बेगम ने उसे कहा, खामोश रहो, सफाई दो और अगला प्रोजेक्ट साइन करो। मगर इस बार आलम खामोश न रही। उसने एक लाइव इंटरव्यू में अपनी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। मैं सिर्फ अदाकारा नहीं, एक इंसान हूँ। मुझे शोहरत नहीं, ये सच्चाई है। फैजान ने उसके साथ खड़े होकर इसे सहारा दिया। सच बोलने में इसको वक्त लगता है, लेकिन आखिरकार सच ही जीतता है। ड्रामा निकाब रिलीज हुआ, वो
ही हेड हो गया नजदीन को आराम का किरदार दिल से लगा, लोगों ने उसे दोबारा इज्जत दी। मोहब्बती शगुफ्ता बेगम ने पहली बार अपनी बेटी का आंखों में इत्मीनान देगा, शायद अब तुम वाकई एक फनकार बन गई हो। उन्होंने इस्तेहसा ये कहा। ड्रामा सीरीज के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करिए, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। शोहरत की चकाचौंध दुनिया में हर चेहरे के पीछे एक हकीकत छुपी होती है, और आरम की हकीकत वो थी जो कैमरा कभी कैद ना कर सका। आरम एक कामयाब अदाकारा थी जिसके ड्रामे पाकिस्तान भर में मकबूल थे। उसकी मुस्कुराहट, अंदाज और आंखों की जादू हर देखने वाले को अपना गर्विदा बना लेता, मगर अंदर से वो तन्हाई का शिकार थी, टूटती हुई, बिखरती हुई। इसकी जिंदगी पर उसकी माँ शगुफ्ता बेगम का मुकम्मल इख्तियार था, जो हमेशा पैसा और शोहरत की दीवानी रही थी। शगुफ्ता बेगम के लिए आरम एक ब्रांड थी। बेटी नहीं, ये रोल कर लो, इससे फॉलोअर्स मरेंगे, तुम्हें सिर्फ स्क्रीन पर परफेक्ट लगना है, बाकी सब छोड़ दो। ऐसे जुमले आरम के कानों में रोज गूंजते। एक दिन डायरेक्टर फैजान ने आरम को अपने ड्रामा निकाब के लिए ऑफर दी। वो कहानी एक ऐसी लड़की पर मबनी थी जो शोहरत की चमक के पीछे अपनी शनाख्त को देती है। आरम को लगा जैसे वही कहानी इसकी अपनी है। फैजान, जो खुद भी फिल्मी दुनिया की सियासत से मायूस हो चुका था, वो एक सच्चा और गहरा इंसान था। इसकी नजर आरम के असल शख्सियत पर पड़ी, न कि उसकी मास्क पर जो वो दुनिया को दिखाती थी। ड्रामा की रिहर्सल के दौरान आरम और फैजान के कुर्बत बनने लगी। आरम पहली बार किसी से खुलकर बात करती, हंसती रोती। तुम इतनी उदास क्यों हो? आरम फैजान ने एक दिन पूछा। क्योंकि मैं वो हूँ, यही नहीं जो लोग देखते हैं। आरम के बाद लर्ज की फैजान ने उसे यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उसके अदाकारी का नहीं, उसका सच का भी किरदार है। आरम के दिल में बरसों से दिबी मोहब्बत के ख्वाहिश जाग उठी, लेकिन तभी मार्जी का एक साया लौट आया। दानिश, आरम का साबिक मंगीदार, जिसने उसे सिर्फ शोहरत की सहेली समझता था, अब वो वापस आकर आरम की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। दानिश ने मीडिया पर आरम के खिलाफ झूठी खबरें पिलाना शुरू कर दी। आरम का फैजान से गैर-अखलाकी ताल्लुक, आरम ने ड्रामे में नामुनासिब सीन करने से इनकार कर दिया। शूटिंग बंद, हर तरफ सिर्फ इल्जाम, तनकीद और तबसरे। सोशल मीडिया ने इसे विलन बना दिया। आरम एक बार फिर टूट गई। शगुफ्ता बेगम ने उसे कहा, खामोश रहो, सफाई दो और अगला प्रोजेक्ट साइन करो, मगर इस बार आरम खामोश न रही। उसने एक लाइव इंटरव्यू में अपनी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। मैं सिर्फ अदाकारा नहीं, एक इंसान हूँ, मुझे शोहरत नहीं, इज्जत चाहिए। फैजान ने उसके साथ खड़े होकर इसे सहारा दिया। सच बोलने में इस वक्त लगता है, लेकिन आखिरकार सच ही जीता है। ड्रामा निकाब रिलीज हुआ, वो ही हेड हो गया। नजदीन को आराम का किरदार दिल से लगा, लोगों ने उसे दोबारा इज्जत दी। मोहब्बती शगुफ्ता बेगम ने पहली बार अपनी बेटी का आंखों में इत्मीनान देगा, शायद अब तुम वाकई एक फनकार बन गई हो। उन्होंने इस्तेहसा ये कहा। ड्रामा सीरीज के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करिए, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। शोहरत की चकाचौंध दुनिया में हर चेहरे के पीछे एक हकीकत छुपी होती है, और आरम की हकीकत वो थी जो कैमरा कभी कैद ना कर सका। आरम एक कामयाब अदाकारा थी जिसके ड्रामे पाकिस्तान भर में मकबूल थे। उसकी मुस्कुराहट, अंदाज और आंखों की जादू हर देखने वाले को अपना गर्विदा बना लेता, मगर अंदर से वो तन्हाई का शिकार थी, टूटती हुई, बिखरती हुई। इसकी जिंदगी पर उसकी माँ शगुफ्ता बेगम का मुकम्मल इख्तियार था, जो हमेशा पैसा और शोहरत की दीवानी रही थी। शगुफ्ता बेगम के लिए आरम एक ब्रांड थी। बेटी नहीं, ये रोल कर लो, इससे फॉलोअर्स मरेंगे, तुम्हें सिर्फ स्क्रीन पर परफेक्ट लगना है, बाकी सब छोड़ दो। ऐसे जुमले आरम के कानों में रोज गूंजते। एक दिन डायरेक्टर फैजान ने आरम को अपने ड्रामा निकाब के लिए ऑफर दी। वो कहानी एक ऐसी लड़की पर मबनी थी जो शोहरत की चमक के पीछे अपनी शनाख्त को देती है। आरम को लगा जैसे वही कहानी इसकी अपनी है। फैजान, जो खुद भी फिल्मी दुनिया की सियासत से मायूस हो चुका था, वो एक सच्चा और गहरा इंसान था। इसकी नजर आरम के असल शख्सियत पर पड़ी, न कि उसकी मास्क पर जो वो दुनिया को दिखाती थी। ड्रामा की रिहर्सल के दौरान आरम और फैजान के कुर्बत बनने लगी। आरम पहली बार किसी से खुलकर बात करती, हंसती रोती। तुम इतनी उदास क्यों हो? आरम फैजान ने एक दिन पूछा। क्योंकि मैं वो हूँ,
यही नहीं जो लोग देखते हैं आलम के बाद लेटस की बेजान ने उसे यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उसके अदाकारी का नहीं और उसका सच का भी किरदार है। आलम के दिल में बरसों से दिबी मोहब्बत के ख्वाहिश जाग उठी, लेकिन तभी मार्जी का एक साया लौट आया दानिश, आलम का साबिका मंगीदार, जिसने उसे सिर्फ शोहरत की सहेली समझता था। अब वो वापस आकर आलम की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। दानिश ने मीडिया पर आलम के खिलाफ झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी। आलम का पिजान से आलम ने ड्रामे में नामुनासिब सीन करने से इनकार कर दिया। शूटिंग बंद, हर तरफ सिर्फ इल्जाम, तनकीद और तबसरे। सोशल मीडिया ने इसे विलन बना दिया। आलम एक बार फिर टूट के ही शगुफ्ता बेगम ने उसे कहा, खामोश रहो, सफाई दो और अगला प्रोजेक्ट साइन करो। मगर इस बार आलम खामोश न रही। उसने एक लाइव इंटरव्यू में अपनी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। मैं सिर्फ अदाकारा नहीं, एक इंसान हूँ, मुझे शोहरत नहीं, ये सच्चाई है। बेजान ने उसके साथ खड़े होकर इसे सहारा दिया। सच बोलने में इसको वक्त लगता है, लेकिन आखिरकार सच ही जीता है। ड्रामा निकाब रिलीज हुआ, वो ही हेड हो गया। नजदीन कोराम का किरदार दिल से लगा। लोगों ने उसे दोबारा इज्जत दी। मोहब्बती शगुफ्ता बेगम ने पहली बार अपनी बेटी का आंखों में इत्मीनान देगा। शायद अब तुम वाकई एक फनकार बन गई हो, उन्होंने इस्तेहसा ये कहा। ड्रामा सीरीज के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करिए। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। शोहरत की चकाचौंध दुनिया में हर चेहरे के पीछे एक हकीकत छुपी होती है, और आलम की हकीकत होती जो कैमरा कभी कैद न कर सका। आलम एक कामयाब अदाकारा थी जिसके ड्रामे पाकिस्तान भर में मकबूल थे। उसकी मुस्कुराहट, अंदाज और आंखों की जादू हर देखने वाले को अपना गर्विदा बना लेता, मगर अंदर से वो तन्हाई का शिकार थी, टूटती हुई, बिखरती हुई। इसकी जिंदगी पर उसकी माँ शगुफ्ता बेगम का मुकम्मल इख्तियार था, जो हमेशा पैसा और शोहरत की दीवानी रही थी। शगुफ्ता बेगम के लिए आलम एक ब्रांड थी। बेटी नहीं, ये रोल कर लो, इससे फॉलोअर्स मरेंगे, तुम्हें सिर्फ स्क्रीन पर परफेक्ट लगना है, बाकी सब छोड़ दो। ऐसे जुमले आलम के कानों में रोज गूंजते। एक दिन डायरेक्टर फैजान ने आलम को अपने ड्रामा निकाब के लिए ऑफर दी। वो कहानी एक ऐसी लड़की पर मबनी थी जो शोहरत की चमक के पीछे अपनी शनाख्त खो देती है। आलम को लगा जैसे वही कहानी इसकी अपनी है। फैजान, जो खुद भी फिल्मी दुनिया की सियासत से मायूस हो चुका था, वो एक सच्चा और गहरा इंसान था। इसकी नजर आलम के असल शख्सियत पर पड़ी, ना कि उसकी मास्क पर जो वो दुनिया को दिखाती थी। ड्रामा की रिहर्सल के दौरान आलम और फैजान के कुर्बत बनने लगी। आलम पहली बार किसी से खुलकर बात करती, हंसती रोती। तुम इतनी उदास क्यों हो? आलम फैजान ने एक दिन पूछा। क्योंकि मैं वो हूँ। यही नहीं जो लोग देखते हैं आलम के बाद लेटस की बेजान ने उसे यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उसके अदाकारी का नहीं, उसका सच का भी किरदार है। आलम के दिल में बरसों से दिबी मोहब्बत के ख्वाहिश जाग उठी, लेकिन तभी मार्जी का एक साया लौट आया। दानिश, आलम का साबिका मंगीदार, जिसने उसे सिर्फ शोहरत की सहेली समझता था। अब वो वापस आकर आलम की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। दानिश ने मीडिया पर आलम के खिलाफ झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी। आलम का पिजान से आलम ने ड्रामे में नामुनासिब सीन करने से इनकार कर दिया। शूटिंग बंद, हर तरफ सिर्फ इल्जाम, तनकीद और तबसरे। सोशल मीडिया ने इसे विलन बना दिया। आलम एक बार फिर टूट के ही शगुफ्ता बेगम ने उसे कहा, खामोश रहो, सफाई दो और अगला प्रोजेक्ट साइन करो। मगर इस बार आलम खामोश न रही। उसने एक लाइव इंटरव्यू में अपनी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। मैं सिर्फ अदाकारा नहीं, एक इंसान हूँ, मुझे शोहरत नहीं, ये सच्चाई है। फैजान ने उसके साथ खड़े होकर इसे सहारा दिया। सच बोलने में इसको वक्त लगता है, लेकिन आखिरकार सच ही जीता है। ड्रामा निकाब रिलीज हुआ, वो ही हेड हो गया। नजदीन कोराम का किरदार दिल से लगा। लोगों ने उसे दोबारा इज्जत दी। मोहब्बती शगुफ्ता बेगम ने पहली बार अपनी बेटी का आंखों में इत्मीनान देगा। शायद अब तुम वाकई एक फनकार बन गई हो, उन्होंने इस्तेहसा ये कहा। ड्रामा सीरीज के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करिए। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। शोहरत की चकाचौंध दुनिया में हर चेहरे के पीछे एक हकीकत छुपी होती है, और आलम की हकीकत होती जो कैमरा कभी कैद ना कर सका। आलम एक कामयाब अदाकारा थी जिसके ड्रामे पाकिस्तान भर में मकबूल थे। उसकी मुस्कुराहट, अंदाज और आंखों की जादू
हर दिखने वाले को अपना गर्विदा बना लेता, मगर अंदर से वो तन्हाई का शिकार थी, टूटती हुई बिखरती हुई। इसकी जिंदगी पर उसकी माँ शगुफ्ता बेगम का मुकम्मल इख्तियार था, जो हमेशा पैसा और शोहरत की दीवानी रही थी। शगुफ्ता बेगम कहते आराम एक ब्रांड थी, बेटी नहीं ये रोल कर लो, इससे फॉलोअर्स मरेंगे, तुम्हें सिर्फ स्क्रीन पर परफेक्ट लगना है, बाकी सब छोड़ दो। ऐसे जुमले आराम के कानों में रोज गूंजते। एक दिन डायरेक्टर फैजान ने आराम को अपने ड्रामा निकाब के लिए ऑफर दी। वो कहानी एक ऐसी लड़की पर मबनी थी जो शोहरत की चमक के पीछे अपनी शनाख्त को देती है। आराम को लगा जैसे वही कहानी इसकी अपनी है। फैजान जो खुद भी फिल्मी दुनिया की सियासत से मायूस हो चुका था, वो एक सच्चा और गहरा इंसान था। इसकी नजर आराम के सच शख्सियत पर पड़ी, न कि उसकी मास्क पर जो वो दुनिया को दिखाती थी। ड्रामा की रिहर्सल के दौरान आराम और फैजान के कुर्बत बनने लगी। आराम पहली बार किसी से खुलकर बात करती हंसती रहती। तुम इतनी उदास क्यों हो? आराम फैजान ने एक दिन पूछा। क्योंकि मैं वो हूँ, यही नहीं जो लोग देखते हैं। आराम के बाद लहज के फैजान ने उसे यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उसके अदाकारी का नहीं, उसका सच का भी किरदार है। आराम के दिल में बरसों से दिबी मोहब्बत के ख्वाहिश जाग उठी, लेकिन तभी मार्जी का एक साया लौटाया दानिश, आराम का साबिका मंगीदार, जिसने उसे सिर्फ शोहरत की सहेली समझता था। अब वो वापस आकर आराम की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। दानिश ने मीडिया पर आराम के खिलाफ झूठी खबरें पिलाना शुरू कर दी। आराम का फैजान से इख्लाक ताल्लुक। आराम ने ड्रामे में नामुनासिब सीन करने से इनकार कर दिया। शूटिंग बंद, हर तरफ सिर्फ इल्जाम, तनकीद और तबसरे। सोशल मीडिया ने इसे बुलंद बना दिया। आराम एक बार फिर टूट गई। शगुफ्ता बेगम ने उसे कहा, खामोश रहो, सफाई दो और अगला प्रोजेक्ट साइन करो। मगर इस बार आराम खामोश न रही। उसने एक लाइव इंटरव्यू में अपनी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। मैं सिर्फ अदाकारा नहीं, एक इंसान हूँ, मुझे शोहरत नहीं, ये सच्चाई है। फैजान ने उसके साथ खड़े होकर इसे सहारा दिया। सच बोलने में इसको वक्त लगता है, लेकिन आखिरकार सच ही जीता है। ड्रामा निकाब रिलीज हुआ, वो ही हेड हो गया। नज़दीन को आराम का किरदार दिल से लगा। लोगों ने उसे दोबारा इज्जत दी, मोहब्बत दी। शगुफ्ता बेगम ने पहली बार अपनी बेटी का आंखों में इत्मीनान देखा। शायद अब तुम वाकई एक फनकार बन गई हो, उन्होंने ऐसा ये कहा। ड्रामा सीरीज के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करिए। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। शोहरत की चकाचौंध दुनिया में हर चेहरे के पीछे एक हकीकत छुपी होती है, और आराम की हकीकत होती जो कैमरा कभी कैद ना कर सका। आराम एक कामयाब अदाकारा थी जिसके ड्रामे पाकिस्तान भर में मकबूल थे। उसकी मुस्कुराहट, अंदाज और आंखों की जादू हर देखने वाले को अपना गर्विदा बना लेता, मगर अंदर से वो तन्हाई का शिकार थी, टूटती हुई बिखरती हुई। इसकी जिंदगी पर उसकी माँ शगुफ्ता बेगम का मुकम्मल इख्तियार था, जो हमेशा पैसा और शोहरत की दीवानी रही थी। शगुफ्ता बेगम कहते आराम एक ब्रांड थी, बेटी नहीं ये रोल कर लो, इससे फॉलोअर्स मरेंगे, तुम्हें सिर्फ स्क्रीन पर परफेक्ट लगना है, बाकी सब छोड़ दो। ऐसे जुमले आराम के कानों में रोज गूंजते। एक दिन डायरेक्टर फैजान ने आराम को अपने ड्रामा निकाब के लिए ऑफर दी। वो कहानी एक ऐसी लड़की पर मबनी थी जो शोहरत की चमक के पीछे अपनी शनाख्त को देती है। आराम को लगा जैसे वही कहानी इसकी अपनी है। फैजान जो खुद भी फिल्मी दुनिया की सियासत से मायूस हो चुका था, वो एक सच्चा और गहरा इंसान था। इसकी नजर आराम के असर शख्सियत पर पड़ी, न कि उसकी मास्क पर जो वो दुनिया को दिखाती थी। ड्रामा की रिहर्सल के दौरान आराम और फैजान के कुर्बत बनने लगी। आराम पहली बार किसी से खुलकर बात करती हंसती रोती। तुम इतनी उदास क्यों हो? आराम फैजान ने एक दिन पूछा। क्योंकि मैं वो हूँ, यही नहीं जो लोग देखते हैं। आराम के बाद लहज के फैजान ने उसे यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उसके अदाकारी का नहीं, उसका सच का भी किरदार है। आराम के दिल में बरसों से दिबी मोहब्बत के ख्वाहिश जाग उठी, लेकिन तभी मार्जी का एक साया लौटाया दानिश, आराम का साबिका मंगीदार, जिसने उसे सिर्फ शोहरत की सहेली समझता था। अब वो वापस आकर आराम की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। दानिश ने मीडिया पर आराम के खिलाफ झूठी खबरें पिलाना शुरू कर दी। आराम का फैजान से इख्लाक ताल्लुक। आराम ने ड्रामे में नामुनासिब सीन करने से इनकार कर दिया।
शूटिंग बंद, हर तरफ सिर्फ इल्जाम, तनकीद और तबसरे। सोशल मीडिया ने इसे विलन बना दिया। आरम एक बार फिर टूट गई। शगुफ्ता बेगम ने उसे कहा, खामोश रहो, सफाई दो और अगला प्रोजेक्ट साइन करो। मगर इस बार आरम खामोश न रही। उसने एक लाइव इंटरव्यू में अपनी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। मैं सिर्फ अदाकारा नहीं, एक इंसान हूँ। मुझे शोहरत नहीं, इज्जत चाहिए। फैजान ने उसके साथ खड़े होकर इसे सहारा दिया। सच बोलने में इसको वक्त लगता है, लेकिन आखिरकार सच ही जीता है। ड्रामा निकाब रिलीज हुआ, वो ही हेड हो गया। नज़दीन खुर्रम का किरदार दिल से लगा। लोगों ने उसे दोबारा इज्जत दी, मोहब्बत दी। शगुफ्ता बेगम ने पहली बार अपनी बेटी का आंखों में इत्मीनान देखा। शायद अब तुम वाकई एक फनकार बन गई हो, उन्होंने इस तरह साफ ये कहा। ड्रामा सीरीज के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करिए। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। शोहरत की चकाचौंध दुनिया में हर चेहरे के पीछे एक हकीकत छिपी होती है, और आरम की हकीकत वो थी जो कैमरा कभी कैद ना कर सका। आरम एक कामयाब अदाकारा थी जिसके ड्रामे पाकिस्तान भर में मकबूल थे। उसकी मुस्कुराहट, अंदाज और आंखों की जादू हर देखने वाले को अपना गर्विदा बना लेता। मगर अंदर से वो तन्हाई का शिकार थी, टूटी हुई, बिखरती हुई। इसकी जिंदगी पर उसकी माँ शगुफ्ता बेगम का मुकम्मल इख्तियार था, जो हमेशा पैसा और शोहरत की दीवानी रही थी। शगुफ्ता बेगम कहते आरम एक ब्रांड थी। बेटी नहीं, ये रोल कर लो, इससे फॉलोअर्स मरेंगे। तुम्हें सिर्फ स्क्रीन पर परफेक्ट लगना है, बाकी सब छोड़ दो। ऐसे जुमले आरम के कानों में रोज गूंजते। एक दिन डायरेक्टर फैजान ने आरम को अपने ड्रामा निकाब के लिए ऑफर दी। वो कहानी एक ऐसी लड़की पर मबनी थी जो शोहरत की चमक के पीछे अपनी शनाख्त को देती है। आरम को लगा जैसे वही कहानी इसकी अपनी है। फैजान, जो खुद भी फिल्मी दुनिया की सियासत से मायूस हो चुका था, वो एक सच्चा और गहरा इंसान था। इसकी नजर आरम के सच शख्सियत पर पड़ी, न कि उसके मास्क पर जो वो दुनिया को दिखाती थी। ड्रामा की रिहर्सल के दौरान आरम और फैजान के कुर्बत बढ़ने लगी। आरम पहली बार किसी से खुलकर बात करती हंसती रोती। तुम इतने उदास क्यों हो? आरम फैजान ने एक दिन पूछा। क्योंकि मैं वो हूँ, यही नहीं जो लोग देखते हैं। आरम के बाद लर्ज की। फैजान ने उसे यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उसके अदाकारी का नहीं, उसका सच का भी किरदार है। आरम के दिल में बरसों से दिबी मोहब्बत के ख्वाहिश जाग उठी, लेकिन तभी माजी का एक साया लौट आया। दानिश, आरम का साबिका मंगेतर, जिसने उसे सिर्फ शोहरत की सहेली समझता था, अब वो वापस आकर आरम की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। दानिश ने मीडिया पर आरम के खिलाफ झूठी खबरें पिलाना शुरू कर दी। आरम का फैजान से गैर-अखलाकी ताल्लुक। आरम ने ड्रामे में नामुनासिब सीन करने से इनकार कर दिया। शूटिंग बंद, हर तरफ सिर्फ इल्जाम, तनकीद और तबसरे। सोशल मीडिया ने इसे विलन बना दिया। आरम एक बार फिर टूट गई। शगुफ्ता बेगम ने उसे कहा, खामोश रहो, सफाई दो और अगला प्रोजेक्ट साइन करो। मगर इस बार आरम खामोश न रही। उसने एक लाइव इंटरव्यू में अपनी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। मैं सिर्फ अदाकारा नहीं, एक इंसान हूँ। मुझे शोहरत नहीं, इज्जत चाहिए। फैजान ने उसके साथ खड़े होकर इसे सहारा दिया। सच बोलने में इसको वक्त लगता है, लेकिन आखिरकार सच ही जीता है। ड्रामा निकाब रिलीज हुआ, वो ही हेड हो गया। नज़दीन खुर्रम का किरदार दिल से लगा। लोगों ने उसे दोबारा इज्जत दी, मोहब्बत दी। शगुफ्ता बेगम ने पहली बार अपनी बेटी का आंखों में इत्मीनान देखा। शायद अब तुम वाकई एक फनकार बन गई हो, उन्होंने इस तरह साफ ये कहा। ड्रामा सीरीज के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करिए। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। शोहरत की चकाचौंध दुनिया में हर चेहरे के पीछे एक हकीकत छुपी होती है, और आरम की हकीकत वो थी जो कैमरा कभी कैद ना कर सका। आरम एक कामयाब अदाकारा थी जिसके ड्रामे पाकिस्तान भर में मकबूल थे। उसकी मुस्कुराहट, अंदाज और आंखों की जादू हर देखने वाले को अपना गर्विदा बना लेता। मगर अंदर से वो तन्हाई का शिकार थी, टूटी हुई, बिखरती हुई। इसकी जिंदगी पर उसकी माँ शगुफ्ता बेगम का मुकम्मल इख्तियार था, जो हमेशा पैसा और शोहरत की दीवानी रही थी। शगुफ्ता बेगम कहते आरम एक ब्रांड थी। बेटी नहीं, ये रोल कर लो, इससे फॉलोअर्स मरेंगे। तुम्हें सिर्फ स्क्रीन पर परफेक्ट लगना है, बाकी सब छोड़ दो। ऐसे जुमले आरम के कानों में रोज गूंजते। एक दिन डायरेक्टर फैजान ने आरम को अपने ड्रामा
निकाब के लिए अफर्दी वो कहानी एक ऐसी लड़की पर मबनी थी जो शोहरत की चमक के पीछे अपनी शनाख्त को देती है। आलम को लगा जैसे वही कहानी इसके अपनी है। फैजान जो खुद भी फिल्मी दुनिया की सियासत से मायूस हो चुका था, वो एक सच्चा और गहरा इंसान था। इसकी नजर आलम के असल शख्सियत पर पड़ी, ना कि उसके मास्क पर जो वो दुनिया को दिखाती थी। ड्रामा की रिहर्सल के दौरान आलम और फैजान के कुर्बत बढ़ने लगी। आलम पहली बार किसी से खुलकर बात करती हंसती रोती। तुम इतनी उदास क्यों हो? आलम फैजान ने एक दिन पूछा। क्योंकि मैं वो हूँ। यही नहीं जो लोग देखते हैं। आलम के बाद लर्ज की फैजान ने उसे यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उसके अदाकारी का नहीं, उसका सच का भी कदरदान है। आलम के दिल में बरसों से दिबी मोहब्बत के ख्वाहिश जाग उठी, लेकिन तभी माजी का एक साया लौट आया। दानिश, आलम का साबिका मंगेतर, जिसने उसे सिर्फ शोहरत की सैली समझता था, अब वो वापस आकर आलम की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। दानिश ने मीडिया पर आलम के खिलाफ झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी। आलम का फैजान से गैर अखलाकी ताल्लुक। आलम ने ड्रामे में नामुनासिब सीन करने से इनकार कर दिया। शूटिंग बंद, हर तरफ सिर्फ इल्जाम, तनकीद और तबसरे। सोशल मीडिया ने इसे विलन बना दिया। आलम एक बार फिर टूट के ही शगुफ्ता बेगम ने उसे कहा, खामोश रहो, सफाई दो और अगला प्रोजेक्ट साइन करो। मगर इस बार आलम खामोश न रही। उसने एक लाइव इंटरव्यू में अपनी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। मैं सिर्फ अदाकारा नहीं, एक इंसान हूँ। मुझे शोहरत नहीं, इज्जत चाहिए। फैजान ने उसके साथ खड़े होकर इसे सहारा दिया। सच बोलने में इसको वक्त लगता है, लेकिन आखिरकार सच ही जीता है। ड्रामा निकाब रिलीज हुआ, वो ही हेड हो गया। नज़दीन खुर्रम का किरदार दिल से लगा। लोगों ने उसे दोबारा इज्जत दी, मोहब्बत दी। शगुफ्ता बेगम ने पहली बार अपनी बेटी का आंखों में इत्मीनान देखा। शायद अब तुम वाकई एक फनकार बन गई हो, उन्होंने इस हिस्सा ये कहा। ड्रामा सीरीज के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करिए। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। शोहरत की चकाचौंध दुनिया में हर चेहरे के पीछे एक हकीकत छिपी होती है, और आलम की हकीकत वो थी जो कैमरा कभी कैद ना कर सका। आलम एक कामयाब अदाकारा थी जिसके ड्रामे पाकिस्तान भर में मकबूल थे। उसकी मुस्कुराहट, अंदाज और आंखों की जादू हर देखने वाले को अपना गर्विदा बना लेता। मगर अंदर से वो तन्हाई का शिकार थी, टूटी हुई, बिखरती हुई। इसकी जिंदगी पर उसकी माँ शगुफ्ता बेगम का मुकम्मल इख्तियार था, जो हमेशा पैसा और शोहरत की दीवानी रही थी। शगुफ्ता बेगम के लिए आलम एक ब्रांड थी। बेटी नहीं, ये रोल कर लो, इससे फॉलोअर्स मरेंगे। तुम्हें सिर्फ स्क्रीन पर परफेक्ट लगना है, बाकी सब छोड़ दो। ऐसे जुमले आलम के कानों में रोज गूंजते। एक दिन डायरेक्टर फैजान ने आलम को अपने ड्रामा निकाब के लिए अफर्दी वो कहानी एक ऐसी लड़की पर मबनी थी जो शोहरत की चमक के पीछे अपनी शनाख्त को देती है। आलम को लगा जैसे वही कहानी इसकी अपनी है। फैजान जो खुद भी फिल्मी दुनिया की सियासत से मायूस हो चुका था, वो एक सच्चा और गहरा इंसान था। इसकी नजर आलम के असल शख्सियत पर पड़ी, ना कि उसके मास्क पर जो वो दुनिया को दिखाती थी। ड्रामा की रिहर्सल के दौरान आलम और फैजान के कुर्बत बढ़ने लगी। आलम पहली बार किसी से खुलकर बात करती हंसती रोती। तुम इतनी उदास क्यों हो? आलम फैजान ने एक दिन पूछा। क्योंकि मैं वो हूँ। यही नहीं जो लोग देखते हैं। आलम के बाद लर्ज की फैजान ने उसे यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उसके अदाकारी का नहीं, उसका सच का भी कदरदान है। आलम के दिल में बरसों से दिबी मोहब्बत के ख्वाहिश जाग उठी, लेकिन तभी माजी का एक साया लौट आया। दानिश, आलम का साबिका मंगेतर, जिसने उसे सिर्फ शोहरत की सैली समझता था, अब वो वापस आकर आलम की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। दानिश ने मीडिया पर आलम के खिलाफ झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी। आलम का फैजान से गैर अखलाकी ताल्लुक। आलम ने ड्रामे में नामुनासिब सीन करने से इनकार कर दिया। शूटिंग बंद, हर तरफ सिर्फ इल्जाम, तनकीद और तबसरे। सोशल मीडिया ने इसे विलन बना दिया। आलम एक बार फिर टूट के ही शगुफ्ता बेगम ने उसे कहा, खामोश रहो, सफाई दो और अगला प्रोजेक्ट साइन करो। मगर इस बार आलम खामोश न रही। उसने एक लाइव इंटरव्यू में अपनी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। मैं सिर्फ अदाकारा नहीं, एक इंसान हूँ। मुझे शोहरत नहीं, इज्जत चाहिए। फैजान ने उसके साथ खड़े होकर इसे सहारा दिया। सच बोलने में इसको वक्त लगता है, लेकिन आखिरकार सच ही जीता है। ड्रामा निकाब रिलीज हुआ, वो
ही हेड हो गया नजदीक और आम का किरदार दिल से लगा। लोगों ने इसे दोबारा इज्जत दी। मोहब्बती शगुफ्ता बेगम ने पहली बार अपनी बेटी का हुक्मी इत्मीनान देखा। शायद अब तुम वाकई एक पंखार बन गई हो। उन्होंने ऐसा ये कहा। रामासिल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करिए। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। शोहरत की चकाचौंध दुनिया में हर चेहरे के पीछे एक हकीकत छुपी होती है और आराम की हकीकत वो थी जो कैमरा कभी कैद ना कर सका। आराम एक कामयाब अदाकारा थी जिसके ड्रामे पाकिस्तान भर में मकबूल थे। उसकी मुस्कुराहट, अंदाज और आंखों की जादू हर देखने वाले को अपना गर्विदा बना लेता, मगर अंदर से वो तन्हाई का शिकार थी, टूटती हुई, बिखरती हुई। इसकी जिंदगी पर उसकी माँ शगुफ्ता बेगम का मुकम्मल इख्तियार था, जो हमेशा पैसा और शोहरत की दीवानी रही थी। शगुफ्ता बेगम के लिए आराम एक ब्रांड थी। बेटी नहीं, ये रोल कर लो, इससे फॉलोअर्स मरेंगे। तुम्हें सब स्क्रीन पर परफेक्ट लगना है, बाकी सब छोड़ दो। ऐसे जुमले आराम के कानों में रोज गूंजते। एक दिन डायरेक्टर फैजान ने आराम को अपने ड्रामा निकाब के लिए ऑफर दी। वो कहानी एक ऐसी लड़की पर मबनी थी जो शोहरत की चमक के पीछे अपनी शनाख्त को देती है। आराम को लगा जैसे वही कहानी इसकी अपनी है। फैजान जो खुद भी फिल्मी दुनिया के सियासत से मायूस हो चुका था, वो एक सच्चा और गहरा इंसान था। इसकी नजर आराम के असल शख्सियत पर पड़ी, ना कि उसके मास्क पर जो वो दुनिया को दिखाती थी। ड्रामा की रिहर्सल के दौरान आराम और फैजान के कुर्बत बनने लगी। आराम पहली बार किसी से खुल कर बात करती, हंसती रोती। तुम इतनी उदास क्यों हो? आराम फैजान ने एक दिन पूछा। क्योंकि मैं वो हूँ, यही नहीं जो लोग देखते हैं। आराम के बाद लरज़ की फैजान ने उसे यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उसके अदाकारी का नहीं और उसका सच का भी किरदार है। आराम के दिल में बरसों से दिबी मोहब्बत के ख्वाहिश जाग उठी, लेकिन तभी मार्जी का एक साया लौट आया। दानिश, आराम का साबिका मंगेतर, इसने उसे सिर्फ शोहरत की सहेली समझता था। अब वो वापस आकर आराम की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। दानिश ने मीडिया पर आराम के खिलाफ झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी। आराम का फैजान से गैर-अखलाकी ताल्लुक। आराम ने ड्रामे में नामुनासिब सीन करने से इनकार कर दिया। शूटिंग बंद, हर तरफ सिर्फ इल्जाम, तनकीद और तबसरे। सोशल मीडिया ने इसे विलन बना दिया। आराम एक बार फिर टूट गई। शगुफ्ता बेगम ने उसे कहा, खामोश रहो, सफाई दो और अगला प्रोजेक्ट साइन करो। मगर इस बार आराम खामोश न रही। उसने एक लाइव इंटरव्यू में अपनी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। मैं सिर्फ अदाकारा नहीं, एक इंसान हूँ। मुझे शोहरत नहीं, ये सच्चाई है। फैजान ने उसके साथ खड़े होकर इसे सहारा दिया। सच बोलने में इसको वक्त लगता है, लेकिन आखिरकार सच ही जीता है। ड्रामा निकाब रिलीज हुआ, वो ही हेड हो गया नजदीक और आम का किरदार दिल से लगा। लोगों ने इसे दोबारा इज्जत दी। मोहब्बती शगुफ्ता बेगम ने पहली बार अपनी बेटी का आंखों में इतनी